So today we will be taking history taking respiratory system. Okay. So do you guys know how to take a history? Do you guys know how to take the history of present illness? All the format? Okay. So whenever a patient comes, what are the things that you are going to ask? Whenever a patient comes, what are you going to ask the patient? First, you have to ask his name, age, and gender. Okay, these are the main from where you are going to start that when a patient comes to you on LPD. Okay, so after that, what are you going to ask? Yeah. Okay. So after the main inquiry part, what comes next? Chief complaints. Chief complaints comes. When they will tell you, after that you are going to proceed. Okay. So in chief complaints there can be uh, history of cough. So when you are going to write cough, so you then going to ask the patient what is the amount of days he was having cough, he or she was having cough, or they can say shortness of breath. Okay, so when you are going to write the chief complaints, you have to write it on the patient's uh, way. Like if they are saying shortness of breath, then you are going to write shortness of breath. But when you are presenting the history of present illness, then you are going to say in medical term. Like if he has shortness of breath, then you are going to say he has dyspnea. Or if he has less, if he can't pass urine properly, then you will say less micturition. Okay. So after that, you are going to keep when you are given the uh, case, then you have to write the chief complaints, past medical, family history, everything. But you have to keep the history of present illness blank because in the history of present illness, you are going to write it in a paragraph to summarize the whole case. Okay. Then after that, you are going to ask about any past medical history, anything like if he has type 2 diabetes, hypertension, or any kind of surgical history. So if he has any kind of surgical history, you are going to ask him when he had a surgical history, at what part of this body he had the thing, surgery. Okay? After that, you are going to ask him about the family history. Family history is very important. Okay? Everything that you going to, every kind of disease has a genetic link up. Okay, so family history is very important. You are going to ask him what if he is presenting the case for like a bronchial asthma. So you are going to ask him if he has, if his father or mother or his grandparents had this kind of disease or not. It is very important. Okay. Another thing about past medical history, it is called as comorbidities, like hypertension or diabetes. If the examiner asks what are his comorbidities, then you are going to say these two things. Okay, don't confuse it. Okay. After that, you are going to ask him about his occupational history. Where does he work? Such as in case a farmer. A farmer, he will have most likely he will have a farmer's land, which means when
it such as rice farmer. So when he separates the rice from the stem, a huge amount of dust particles come out. So if he inhales that, then he will get a certain kind of pneumonia from that. Okay? And it also depends on if the patient is working in a coal mine. In that case, he will have a coal miner's lung, which means when he coughs, the color of the cough will become black in color. Okay? So if he works in a silica coal, then he will have silicosis. So occupational history is also important. Then any kind of drug history. If he is taking any drugs that is for um, type 2 diabetes or hypertension, or if he has any kind of adverse effect regarding that drug. Suppose if he has, um, there are certain cough syrups which we can't give to diabetic patients. So if you already ask him that what he is having, then you will be able to differentiate. Then you will be able to give a different kind of cough syrup, which will be more effective in case of a diabetic patient. Okay, and social history. You are going to ask him where does he goes, what is his interactions. Suppose he doesn't smoke, but he has a friend circle where his friends smoke. So he spends most of his time in that room. So indirectly he becomes a smoker. Okay, so he will have the same kind of symptoms as a chronic smoker will have, since he is exposed to that smoke in more amount of time. Okay, then his personal history, like what is his eating habit, when does he sleeps, when does he go to sleep, or when does he wakes up, or is his sleeping cycle, everything regarding the patient's history. Okay, these are the symptoms which a patient can have during respiratory difficulties, such as cough, sputum production, then breathlessness, chest pain, hemoptysis. You all know hemoptysis? No? Hemoptysis occurs when there is blood mixed in the sputum. Sputum is when you cough, the mucus that comes out from your mouth, that is known as sputum. Okay? Then any kind of abnormal heart sound or breath sound, such as wheeze, rhonchi, crepitations, this type of things. Okay? This is a definition of cough. Okay. It's not very meaningful. Just know it, what it means. Okay. So now comes your part. So if he complains about cough, what are you going to ask him? Your first question will be, for how many days the patient is having cough. Okay? If it is less than 3 weeks, then it is an acute case. In acute case, it can be because of upper respiratory tract infection. Do you know what upper respiratory tract infection is? Anyone? From the nasal cavity to our larynx. Okay? That is the upper respiratory tract infection. Below that, up till our lungs, it is lower respiratory tract infection. Okay? Then it can be pneumonia. And pneumonia can be caused by many things. Bacterial pneumonia, viral pneumonia, fungal pneumonia. Okay? Then pulmonary embolism. What is pulmonary embolism? It is the stoppage of blood vessels due to any kind of clot formation. Okay?
The main clot can come from many parts, but mainly it comes from our lower limbs. Okay? Hmm? Pulmonary embolism. It is when the clot, if there is any kind of clot in our body, if it get lodged to the pulmonary artery of our heart, then it will produce pulmonary embolism, which will stop the blood flow, okay, to the lungs. Then, if the patient says that he is suffering cough for more than 3 weeks but less than 8 weeks, then these are the um, causes which can occur. There is also bacterial infection. Again, post-infective is when there is any kind of infection which happened before, but due to negligence, there is sepsis in our body, and which then the bacteria get lodged to our lungs, and then it causes infection of the lungs. So it is post-infective, which means infection that happened after a certain kind of infection. Post-nasal drip. Post-nasal drip is when there is mucus from our sinuses which travels to our glottis area. When it becomes thick, then it becomes infected. Then we can have coughing reflux. Then, if he says about any, if the symptoms are for more than 8 weeks, these are the causes. So these are the causes which you will think the patient can have. Okay? These are kind of diagnosis. The patient can have pulmonary tuberculosis, bronchial asthma, COPD, bronchogenic carcinoma. Okay? After that, you have to ask at which time he is having cough. Is it around the morning time or is it around the night time? So these are the causes when if he has cough during the night time. Okay. Then it is post-nasal drip, which happens when he is sleeping and the mucus travels from the sinuses to his laryngeal area. Then it's chronic bronchitis, bronchial asthma, obstructive sleep apnea, and aspiration. Do you know what aspiration is? Does anyone know what aspiration is? Aspiration is when contents of our stomach gets lodged to the lungs. Again. So we all know that there is a sphincter, which there is a sphincter around the esophageal and gastric around our stomach. This is known as lower esophageal sphincter. When the sphincter is not able to keep closed, then stomach content may come up to the esophagus and may travel to the trachea and get lodged to the lungs. So that is when aspiration occurs. Okay. Then comes the sputum. Since he says that he is coughing with sputum, there can be dry cough and there can be wet cough. So if he says sputum, then you are going to ask about the consistency. If it is thick or is it normal fluid, or how much he is expectority, the color, at which time he is coughing more, the smell of the cough. Right? Inconsistency, it can be clear
or colorless. Okay. When this clear or colorless, then it is bronchoalveolar carcinoma. It is because of bronchoalveolar carcinoma. If it is mucoid, then it is because of chronic bronchitis. And if it is mucopurulent, which is like the most common type, then it can be because of any bacterial infection. Usually when we have cough, when we have the disease, when we expectorate the cough, it is normally mucopurulent. It is a mixture of mucus and pus. Then you are going to ask about the color of the sputum. Mucopurulent in case of bacterial infection, mucus and pus. Okay. Then comes the color. See, in yellow or greenish, it is bacterial. In black, it's coal work and pneumoconiosis. Those who work in a coal mine might have this black colored sputum. Okay. Then pink frothy is due to pulmonary edema. Rusty sputum is due to pneumococcal pneumonia. After that, you are going to ask if the sputum is foul smelling or not. Okay. These are the things which are you going to ask, and then you are going to think that this can be the diagnosis. Okay. So that is why we are showing this. Foul smelling is due to bronchitis, anaerobic bacterial infection, okay, or if there is lung abscess. Then comes dyspnea part. In dyspnea, what you are going to ask? Dyspnea is shortness of breath. Okay, if anyone asks what dyspnea is, shortness of breath. So then you are going to ask the duration. When did the shortness of breath occur? It is the duration or the severity. Is it much or is it less? Is it aggravating in nature or is it postural variation? Okay. So if a patient comes within some minutes and saying that he is having shortness of breath, so these are the things which you are going to think. If he comes that I am having shortness of breath for 5 minutes, so these are the things that you are going to think that the patient can have. These are pneumothorax. Pneumothorax occurs because of trauma to the chest. If he has any accident and for some reason his rib cage is broken into and it went inside the lung. So now what happens whenever he takes inspiration, the lung gets punctured and the air gets trapped in the pleural cavity. So this way pneumothorax will occur. Okay. Pulmonary embolism, same. When any clot which is forming any part of the body get lost to the pulmonary artery of the patient. Then inhalation of foreign body. It is mainly seen in children below 5 years of age. They can swallow any coin or any marble that get lost to the trachea and got stuck there, and he is or she is not able to breathe properly. Okay. Then there is laryngeal edema. It can happen due to any kind of allergy. Okay. The larynx gets swollen and the air is unable to pass through the trachea. Okay. Laryngeal edema is occurred due to any kind of allergic reaction, such as seasonal allergies. When season changes, people have pollen allergy. Okay, pollens. Then what happens when he comes and says that he is having dyspnea for 1 day or 2 days? Then these are the conditions which can occur during that time. And then what happens when he says he has dyspnea for more than a year, more than a month or 2 months? Okay. COPD, interstitial lung disease, or pleural effusion.
chronic obstructive pulmonary disease. Okay. It is mainly consists of two diseases. What is chronic bronchitis and emphysema. Okay. Emphysema is a irreversible damage. Okay. If anyone has emphysema, he won't be able to get back to normal. Barrel chest chest. Okay. When you are going to examine the patient, you are going to see the patient, inspect the patient. Then you will going to see barrel-shaped chest. Barrel-shaped chest occurs due to emphysema. Okay. The chest area becomes rounded in shape. Normally, it is an elliptical shape. Okay. These are the aggravating factors. Like, what are the reasons because of which he is getting dyspnea or shortness of breath? Exposure to any kind of allergy, exercise when he walks or runs very fast, then people develop shortness of breath, or any kind of drugs or cold weather. These are the relieving factors. You are also going to ask that if the dyspnea relieves and how it relieves. Is it getting relieved with the help of medication, or if he takes any rest, or if he is away from that particular source of allergic reactions. This is hemoptysis. This is blood. When blood is mixed to the sputum, is known as hemoptysis. These are the causes because of which hemoptysis can occur. Tuberculosis, lung abscess, bronchitis, pneumonia, or fungal infections. Then comes chest pain. So in chest pain, these are the whole formula in which you are going to ask where the chest pain is occurring, at what point it is occurring, what is the severity, how long it is taking the chest pain to get relieved. Okay. That is retrosternal pain, which means behind the sternum. The causes are tracheitis, infection to the trachea, or mediastinitis. Mediastinitis is infection that is occurring between the lung and the chest wall. There are organs which are involved between the lung and the chest wall. So, what are the organs that are involved? It's esophagus. Okay. Then it's the heart. Okay. And then it is pleuritis. It is the infection of the pleural cavity. Okay. It is because of hemothorax, pneumothorax, or pulmonary embolism. It can occur. So after writing everything, after taking the history, how are you going to present it to the examiner? You can't say every point individually. You have to make a whole paragraph. When the examiner will ask him, please tell me this what case you got and what is your findings. So what you are going to say? So in history of present illness, you are going to say in a sophisticated manner. Okay, you are going to say, I, Dr. Rajat, is going to present the case of, suppose his name is Gopal, who is 27 years of age, male patient. Then after that, how are you going to write it? According to the patient, okay, he was apparently asymptomatic 7 days back. If he is saying that he has coughed for 7 days, so you are going to write 7 days back, which means he didn't have any symptoms prior to 7 days. Okay, this is very important. According to the patient, always write according to the patient. According to the patient, he was apparently asymptomatic 7 days back when he developed
the symptoms for how many days. Then you are going to say all the past history, all the drug history, everything that is significant. If it is not significant, then you are just going to say there is no significant family history or there is no significant drug history. Okay? The history of present illness part is very important. You are going to present this throughout your medical life. Up till 4th year, you have to say it. Examiner will going to ask you. And remember, you are going to get 2 cases. One is long case and one is short case. In the long case, you have to prepare like that. In a short case, you don't have to prepare very much. Okay? That's it. Now we will show you how respiratory examination is being done. Okay? You have to go to the lab. Then you will be divided into 5 groups, and every one of us will show you how to approach a patient, what to do in a respiratory examination. So we all know how to do it. First is consent, then inspection, palpation, percussion, and auscultation. Okay? एबनॉर्मालिटी तो नहीं है, ठीक है। तो एक चीज जान लो, हचिंगसंस इंडेक्स में ट्रांसवर्स इधर से इधर एंड एंटेरोपोस्टीरियर का रेशियो है 7.7:5, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट है वो इलिप्टिकल शेप में है, ना ही गोल ना ही पूरा स्क्वायरिश, ठीक है, इलिप्टिकल शेप में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई ये तो नहीं है, मतलब एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, पिजन शेप तो नहीं है, सामने की तरफ तो नहीं है, अंदर की तरफ तो नहीं है। पिजन शेप चेस्ट क्यों होता है? रिकेट्स की वजह से, ठीक है। रिकेट्स क्यों होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो इसका जो ये है पिजन शेप चेस्ट है, ये लेमेंस टर्म है। तुम इसको मेडिकल टर्म में कैसे बोलोगे? पेक्टस कैरिनेटम। कैरिनेटम अंदर वाला पार्ट को अंदर धंसा हुआ है चेस्ट, तो उसको बोलोगे पेक्टस एक्सकवेटम। एक्सकवेटम, ठीक है। अगर सामने तरफ है पेरिनेटम, सॉरी कैरिनेटम, सी कैरिनेटम एक्सकवेटम, ठीक है। फिर उसका ये देखेंगे ट्रैकिया का पोजीशन देखेंगे, ठीक है। फिर उसका एपेक्स बीट देखेंगे। पहले तो उसको बोलेंगे पूरा एक्सपोज करने के लिए, अभी एक्सपोज नहीं किया है बट देखने के लिए। फिर उसका एपेक्स बीट देखेंगे। एपेक्स बीट कैसे देखते हैं? ये वाले पार्ट को मेनोब्रियम कहते हैं, ठीक है। मेनोब्रियम, उसके नीचे का जो पार्ट है, जो एकदम जहाँ से स्टर्नम शुरू होता है, इस बॉर्डर से एक रिब जाता है, वो रिब सेकेंड रिब कहते हैं, ठीक है। सेकेंड रिब के इंटरकोस्टल स्पेस से 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक हम इसको ये करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। फिर ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल के मिड क्लेविकुलर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्लेविकल है और इसका मिड पॉइंट ये वाला है, तो इधर से यहाँ तक जाएंगे, 5th तक जाएंगे और इसके 2 सेंटीमीटर मीडियल पार्ट पे रहेंगे। दिस इज वेयर द एपेक्स ऑफ द हार्ट यूनिट्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऐसे ये होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये वाला चीज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका ये देखेंगे, क्या कहते हैं उसको, रेट देखेंगे, कितनी बार ब्रीदिंग ले रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज, 12 to 15, बट तुम्हारे बुक्स में ऐसा दिया है 14 to 20, तो जो बुक्स में दिया है वही बोलना है, 14 to 20, ठीक है। तो अगर 20 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसको टैकिपनिया है, ठीक है।
टैकीकार्डिया पढ़ा है ना, टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है तो टैकीपनिया, टैकीपनिया, ठीक है। और 14 से कम है तो ब्रैडीपनिया। हाँ, एस्थमा, एस्थमा तो डिफरेंट हो गया तुम्हारा, ब्रोंकियल एस्थमा। क्या समझा नहीं? कम हो जाता है इन एस्थमा पेशेंट, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, एस्थमा में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसका ये देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, चेस्ट का डेप्थ कहाँ तक ऊपर जा रहा है, कहाँ तक नीचे जा रहा है। उसके लिए पेशेंट को बोलेंगे लाई डाउन करने के लिए, ठीक है। तुम एक बार लाई डाउन हो जाओ। और जब भी पेशेंट का हम लोग ये देखेंगे ना, तो रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, कभी भी उसको नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट देख रहे हैं, नहीं तो वो वॉलंटरीली उसको मैनिपुलेट कर देगा, ज़्यादा ले लेगा या फिर कम धीरे धीरे छोड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे वो ले रहा है, नॉर्मल ले रहा है, तो उसको हम चेस्ट का डेप्थ देखेंगे। अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो इसका मतलब उसको ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे चला जा रहा है सांस छोड़ने के टाइम पे, फिर अगर शैलो डेप्थ्स हैं तो इसका मतलब उसको ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा अगर लेता है, डेप्थ पे जा रहा है, तो फिर उसको ब्रेन डैमेज या फिर यूरेमिया हो सकता है। यूरेमिया क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। क्रिएटिनिन का लेवल क्या होता है, किसी को पता है? 0.5 या 0.6 to 1.2 होता है नॉर्मली, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब किडनी में दिक्कत है, किडनी ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। डेप्थ देखेंगे, ये देखेंगे, फिर उसका मैनर देखेंगे, रिदम भी देखेंगे कि जो जितनी बार वो ले रहा है वो परफेक्ट रिदम पे है या नहीं, कम ज़्यादा कम हो रहा है या फिर कम ज़्यादा बढ़ रहा है ये तो नहीं है, या फिर वो एकदम नॉर्मल कम ज़्यादा कर रहा है, वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मैनर देखेंगे, इज इट थोरैको एब्डोमिनल और एब्डोमिनो थोरैसिक, ठीक है। इन मेल्स नॉर्मली इट इज एब्डोमिनो थोरैसिक, मतलब हम जब सांस लेते हैं हमारा पेट ये होता है, एक्सपांड होता है, उसके बाद हमारा चेस्ट। इन फीमेल्स उल्टा है, फीमेल्स में थोरैक्स में ज़्यादा पहले एक्सपांड होता है फिर एब्डोमिन। तो फीमेल में है थोरैको एब्डोमिनल, मेल्स में है एब्डोमिनो थोरैसिक, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद उसके एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट देखेंगे, कितना एक्सपांड हो रहा है, बोथ साइड में इक्वली एक्सपांड हो रहा है कि नहीं। अगर बोथ साइड में इक्वली एक्सपांड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसको या तो न्यूमोथोरैक्स है या फिर हीमोथोरैक्स है, ठीक है। मतलब प्लूरल कैविटी में पानी जम गया है या फिर खून जम गया है या फिर हवा आ गया है, जिसकी वजह से वो ठीक से एक्सपांड नहीं कर पा रहे, एक जगह पे आके अटक जा रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं। फिर उसके बाद पैल्पेशन देखेंगे, ठीक है। ये सब हो गया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखेंगे? इंस्पेक्शन अभी जो मैंने बताया, ऊपर से देख के क्या क्या देखेंगे? फॉर्म ऑफ द चेस्ट, पहले तो फॉर्म ऑफ द चेस्ट देखेंगे, ठीक है। रिदम देखेंगे, रेट देखेंगे, ट्रैकिया का पोजीशन देखेंगे, एपेक्स देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैल्पेशन, ठीक है। पैल्पेशन में सबसे पहले, अभी तुम बैठ जाओ, सबसे पहले हम ट्रैकिया का पोजीशन देखेंगे, ठीक है। पैल्पेशन में ट्रैकिया का पोजीशन देखेंगे। ट्रैकिया का पोजीशन देखने के लिए ये 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, ठीक है। इसको स्टर्नल एंड के क्लेविकल के साइड में ऐसे प्लेस करेंगे, दोनों क्लेविकुलर स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल को ऐसे ये करेंगे, रखेंगे, और फिर मिडिल फिंगर से ट्रैकिया को पैल्पेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली सेंट्रल प्लेस्ड है, थोड़ा सा अगर राइट साइड में भी डेविएटेड होता है थोड़ा सा, इट्स नॉर्मल,
और ज़्यादा होगा तो उसका मतलब लंग्स में दिक्कत है, ठीक है। अगर डेविएटेड हो जाता है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, लंग्स को फाइब्रोसिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। फाइब्रोसिस और न्यूमोनिया में क्या हो जाता है, हार्ट लंग्स सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने से क्या होता है, वो खींच लेता है चीज़ को, तो इधर ट्रैकिया है उसको खींच के इस साइड में चला गया, तो इसका मतलब ये साइड का जो लंग है वो खराब हो गया है, इसमें फाइब्रोसिस हो गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एपेक्स बीट। एपेक्स बीट कैसे देखेंगे, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एपेक्स कैसे ही ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं एपेक्स, एक जन बताओ। to the fifth medial. सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस को कैसे करोगे, पैल्पेट करोगे? Below the clavicle, the मेनोब्रियम से, मेनोब्रियम एंड्स, मेनोब्रियम ये वाला पार्ट है, इसके एंड में एक ये है फोसा टाइप एरिया है, उस एरिया से ही उसको पैल्पेट करोगे तो सेकेंड ड्रिप मिल जाएगा। फिर सेकेंड ड्रिप के नीचे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ, फिफ्थ करके ये करेंगे। अब एपेक्स बीट कैसे ये करेंगे, हमारा अल्नर बॉर्डर यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाले पार्ट को कहते हैं अल्नर बॉर्डर। अल्ना है इस साइड में तो अल्नर बॉर्डर, अल्नर नर्व भी इधर से पास होता है, तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ऐसे ये करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे ये वाले पार्ट को, फिर उसके बाद ऐसे इसको ऐसे रख के हम इसका रेट देखेंगे कि बीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि एप्रन और उसके ऊपर और पहने हो, जब एक्सपोज रहेगा रूम में जाके देखना, जब एक्सपोज रहेगा तब एक हल्के से रखना और फील करना बीट को, ठीक है। इसको कहते हैं एपेक्स बीट, इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एनी लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड कहाँ चेक करेंगे, नेक एरिया में, फिर सुप्रा क्लेविकुलर एरिया, क्लेविकल के ऊपर के पार्ट को सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट कहते हैं, क्लेविकल के नीचे वाले पार्ट को, इधर के पार्ट को मेमोरी एरिया कहते हैं, और मेमोरी एरिया के नीचे वाले पार्ट को इंफ्रा मेमोरी, ठीक है। ये जोन्स याद रखना, ठीक है। हाँ, सुप्रा क्लेविकुलर, मेमोरी, इंफ्रा मेमोरी। पीछे की तरफ ये वाला पार्ट है स्केपुला, तब हम स्केपुला के रिलेटेड वाले, सुप्रा स्केपुलर, इंफ्रा स्केपुलर और फिर इंट्रा स्केपुलर, बीच वाले पार्ट को इंट्रा स्केपुलर, स्केपुला के बीच में, ठीक है। सुप्रा स्केपुलर, इंट्रा स्केपुलर, इंफ्रा स्केपुलर, नीचे पार्ट को इंफ्रा स्केपुलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिम्फ नोड देखेंगे, तो लिम्फ नोड के लिए हम लोग सुप्रा क्लेविकुलर एरिया को ऐसे पैल्पेट करेंगे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सिलरी पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे, अपर एक्सिलरी पार्ट, लोअर एक्सिलरी पार्ट, ठीक है। दिस स्वेलिंग हो तो ऐसे नोड्यूल्स की तरह दिखेगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। स्वेलिंग होने का रीज़न है कि उसको ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो गया है, ठीक है। कार्सिनोमा जो होता है वो बॉडी में थ्रू द लिम्फ स्प्रेड होता है, ठीक है। सबसे पहले लिम्फ में स्प्रेड होगा, फिर ब्लड में स्प्रेड होता है, ठीक है। तो अगर स्वेलिंग हो रहा है तो इसका मतलब उस साइड के लंग में ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरी तरफ घूम दो, थोड़ा पास हो जाओ। इसमें हम क्या करेंगे, 10th रिब ऐसे ही करके काउंट करके 10th रिब पे अपना ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे थंब को एक के साथ एक ये करके लगा के, इस साइड में आ जाओ, ये ठीक है।
ऐसे 10th रिब्स पे हमारा हाथ रख के ऐसे ही करेंगे और उसको बोलेंगे डीप इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पायर करो, नहीं करो इंस्पायर, जोर से करो इंस्पायर। अभी इंस्पायर करो, इंस्पायर करो, सांस लो। देखो ये जो है फिंगर्स अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तुमको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, वो खुद से सेपरेट हो जाएंगे। तो इससे हम लोग चेस्ट का ये देख रहे हैं कि दोनों चेस्ट इक्वली एक्सपांड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर से लो, देखो हल्के से पकड़ना है, ऐसे ज़ोर से दबाना नहीं, तो फिर खुद से जो ये फिंगर्स है सेपरेट होने लगेगा, ठीक है। अगर कोई जगह जैसे ये स्टेगनेंट हो गया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मूव हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाले चेस्ट में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पीछे भी हम लोग करेंगे ये चीज़, ऐसे पीछे घूम जाओ, सेपरेट ना हो तो भी तो दिक्कत सेपरेट ना हो तो दिक्कत है, ठीक है। इधर भी हम इंफ्रास्केपुलर पार्ट में इसको ये रख के बोलेंगे इंस्पायर के लिए करो। ये खुद से ये हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका दोनों लंग्स ठीक है। फिर से करो, ठीक है। ये तुम लोग घर में जाके रूम में जाके ये कर लेना, देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम वोकल फ्रेमिटस ये करेंगे। वोकल फ्रेमिटस कैसे? अल्नर बॉर्डर से। वोकल फ्रेमिटस को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग स्केपुलर एरिया में, कोई भी स्केपुलर एरिया में हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको। जैसे फर्स्ट इंटरस्केपुलर एरिया में ऐसे पैल्पेट करेंगे, पैल्पेट करने के बाद हाथ को ऐसे रखेंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि 1 सिलेबल में कोई भी चीज़ बोले, या तो 1 1 1 ऐसे करके 3 बार बोलना है, मेजर करना है। फिर उसके बाद तुरंत दूसरे साइड में देखना है, कंपेयर करना है दोनों साइड को, एवरी लेवल पे ऐसे कंपेयर करके देखना है। ऐसे नहीं कि ये वाला पार्ट कर लिया फिर इधर कर लिया फिर इधर कर लिया, ऐसे नहीं, सेम लेवल पे दोनों साइड में। zigzag हाँ zigzag बोलो 1 1 1 1 1 3 बार बोलना, जोर से नहीं, धीरे धीरे 1 1 1 ऐसे करो 1 1 1 बस। फिर से बोलो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे ऐसे करके तीनों जगह पे, ये मतलब ये एरिया में देखना है जहाँ जहाँ तुमको इंटरकॉस्टल स्पेस पता चल रहा है, ठीक है। वही चीज़ पीछे भी करना है। फिर से करना 1 1 1 1 1 1 ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। इसके करने का रीज़न है कि अगर जो हमारा लंग्स वो अगर फाइब्रोस हो गया, अगर सॉलिड हो गया, तो फिर हमको पता है कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वहाँ से वाइब्रेशन जल्दी ट्रेवल करता है। तो अगर हमको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो रहा है किसी एक साइड में, तो उसका मतलब उसके लंग में या तो फाइब्रोसिस है या निमोनिया है, ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो मतलब ठीक है, बट अगर वाइब्रेशंस कम हो गए तो इसका मतलब उसके लंग में या तो क्या कहते हैं उसको, नहीं, अगर कम हो गया तो फिर हाइड्रोथोरेक्स, पानी जम गया, या फिर हीमोथोरेक्स मतलब खून जमा हो गया, ठीक है। पानी में वाइब्रेशंस कम आता है, तो इसलिए अगर वाइब्रेशंस कम हुआ तो इसका मतलब या फिर पल्मोनरी इफ्यूजन, ठीक है। इसको वोकल फ्रेमिटस कहते हैं। फिर उसके बाद टेंडरनेस चेक करेंगे कि किसी एरिया में पैल्पेट करके देखेंगे कि किसी एरिया में टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है। खत्म, पैल्पेशन वाला पार्ट खत्म। फिर उसके बाद परकशन करेंगे।
परकशन में हम पेशेंट को फिर से बोलेंगे लाई डाउन करने के लिए, और फिर हमारे फिंगर्स, ये वाले 3 फिंगर्स को, जो हमारा डोमिनेंट हैंड है उसको हम एज ए हैमर यूज करेंगे, और नॉन डोमिनेंट हैंड को एज ए प्लेक्सीमीटर, इसको क्या कहेंगे, प्लेक्सीमीटर, ठीक है। फिर इंटरकोस्टल स्पेस में रख के ऐसे साउंड टैप करेंगे, ठीक है। सेम दोनों साइड में ये करके देखना है, कंपेयर करके देखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे कैसे, फिर इधर आके, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो ये साउंड आ रहा है ये रेजोनेंट है, ठीक है। बट राइट साइड में 6th रिब के नीचे अगर तुम करोगे डल, ठीक है, डल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, उधर एक ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। और सेम केस में अगर ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहा है, ज़्यादा तुमको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसको न्यूमोथोरैक्स है, ठीक है। मतलब प्लूरल कैविटी में हवा जम हो गई। प्लूरा मीन्स हीमो मीन्स ब्लड, हीमो मीन्स एयर, सॉरी न्यूमो, हीमो मीन्स ब्लड, मतलब ह्यूमोथोरैक्स हो गया है, एयर जमा हो गया है अगर ज़्यादा हाइपर रेजोनेंट हुआ तो, ठीक है। फिर वही चीज़ फिर हम इधर भी करेंगे, अपर स्कैपुलर एरिया में भी करेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में करेंगे, एक्सिलरी एरिया में करेंगे, पीछे भी करेंगे स्कैपुलर रीजन में, ठीक है। वही चीज़ ऐसे करके दोनों साइड में इक्वल है कि नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। फिर आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम लोगों को स्टेटोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक स्टेटोस्कोप ले लो, ठीक है। हमेशा याद रखना जो साइड ऐसे ही कर्व्ड है, कर्विंग के साइड में है, वो साइड में ही हमेशा स्टेटोस्कोप को पहनना है, ठीक है। जो कॉनकेव साइड है इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव साइड। जैसे अगर ऐसे रखोगे तो ये पार्ट ऐसे कॉनकेव की तरह है, थोड़ा सा ये केव्ड है, तो ये वाला पार्ट को हमेशा ऐसे रखोगे। और ये जो एंगल है वो देख लेना, जो हमारा इनर ऑरिकुलर कैनाल है वो अंदर की तरफ ऐसे है, मुड़ा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करके फिर सबसे पहले ये वाले पार्ट को टैप करके देखना है, ठीक है। ये एक स्विच है इसमें और इसमें ये करने के लिए, ठीक है। ऐसे करके डबल टैप करके देखोगे कि अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो मतलब ये वाला पार्ट ऑन है और ये वाला पार्ट ऑफ है। ये इसका भी एक काम है, इसका भी, ठीक है। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बेल, बेल शेप नहीं, बेल, इसको डायफ्राम, इसको क्या कहते हैं, ईयरपीस, ठीक है। ऐसे ही फिर उसको इंस्पायर करने के लिए बोलोगे, इंस्पायर करो, छोड़ो, छोड़ो, ऐसे करके एवरी लेवल पे ऐसे ऐसे करके देखना, ठीक है। ट्राई करो। हमेशा दोनों साइड में कंपेयर करके देखना है, सेम सेम है कि नहीं दोनों साइड में, ठीक है, ठीक है। तो जो तुमने साउंड सुना है उसको कहते हैं वेसिकुलर साउंड, वेसिकुलर साउंड, जो कि लंग्स के ऊपर मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ देखोगे वेसिकुलर साउंड, इधर इधर देखोगे, मेमोरी एरिया में, इंफ्रा मेमोरी एरिया में देखोगे, फिर एपिकल, इसको एपिकल पार्ट कहते हैं, इधर पे भी देखेंगे, फिर उसके बाद
इंट्रास्केपुलर एरिया में, दोनों इंट्रास्केपुलर एरिया में, इंफ्रास्केपुलर एरिया में, ठीक है। यूजुअली फीमेल्स में हम लोग पीछे की तरफ ही देखते हैं, फीमेल्स में या फिर छोटे बच्चों सामने की तरफ। वो लोग अगर देखते हैं, बच्चे अगर देखते हैं सामने की तरफ कुछ लगा है तो फिर डर जाता है या फिर चिल्लाने लगते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, माँ को बोलते हैं ऐसे लेके पीछे ऐसे ही करते हैं। वैसे ही फीमेल्स के टाइम पे हम पीछे पीछे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर इसको कहते हैं वेसिकुलर साउंड, लंग्स वाले पार्ट को वेसिकुलर साउंड कहते हैं। वेसिकुलर साउंड का एक नेचर होता है रसलिंग इन नेचर। सबके पास स्टेथोस्कोप है घर रूम पे? इसको भी मौका देना सुनने का। हाँ हाँ ऑब्वियसली खुद का भी सुन सकते हैं। अभी तो सब इधर नॉर्मल पेशेंट्स है, नहीं तो तुम लोगों को एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स भी सुना देते हैं, बट सिंस देयर इज नो पेशेंट रिलेटेड लाइक दैट, तो तुम लोग क्या करना, रूम में जाके एबनॉर्मल लंग साउंड्स ये करके यूट्यूब में सुनना, एकदम परफेक्टली तुम लोग मिल जाएगा। उसमें तुम लोगों को वॉइस पता चलेगा, रॉन्ग का ही पता चलेगा, क्रेपिटेशंस पता चलेगा। क्रेपिटेशंस है प्लूरल रब, मतलब फ्रिक्शन जो होता है, अगर एक लंग्स इन्फ्लेम्ड है तो वो प्लूरा में फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से वो क्रेपिटेशंस साउंड आ रहे हैं। वॉइस होता है जब ब्रोंकियल्स जो एयर के जो ये है, हमारा ये क्या है, ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल, फिर एल्वियोलाई में डिवाइड होता है। तो ये क्या कहते हैं, हाँ, जब वो ब्रोंकियल्स साइज में छोटे हो जाते हैं, जब उनका ऐसे पाइप जैसे रहते हैं, जब उनका पाइप का डायमीटर कम हो जाता है तब वॉइस सुनाई देता है, ब्रोंकाई ये सब सुनाई देगा। ठीक है, तो एवरी एबनॉर्मल लंग साउंड इज ए डिजीज। हाँ, कैट स्क्रैच, वो तो वो क्या कहते हैं उसको, प्लूरल रब के बारे में बात कर रहे होंगे। अलग अलग नाम देते हैं बट मीनिंग सही नहीं होता है, ठीक है। ये सब सुन लिया, अब तुम लोगों को डिफरेंशिएट करना है ब्रोंकियल साउंड और वेसिकुलर साउंड में, ठीक है। ब्रोंकियल साउंड कौन सा होता है, ट्रैकिया वाला पार्ट होता है, ठीक है। मेनली तुमको ये वाले पार्ट में, लैरिंजियल पार्ट में तुमको सबसे ज़्यादा सुनाई देगा। ये वाला जो साउंड है वो हॉलो इन नेचर होता है। हॉलो इन नेचर मतलब जैसे हवा पास होता है ना किसी भी सुरंग से, ये किसी भी पाइप से, तो वो जैसे साउंड होता है विदाउट एनी नेचर, कोई रसलिंग नहीं, कोई ये नहीं, तो वैसा सुनाई देगा ब्रोंकियल एरिया में। एक और चीज़ में सुनाई दे सकता है, जब लंग्स में किसी टाइप का फाइब्रोसिस हो, तो उससे क्या होता है, लाइक एम्फाइसीमा हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया, तो उससे क्या होता है, लंग का ये पता है, एनाटॉमी पता है, ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकियल्स है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स है, फिर लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर एल्वियोलाई है, ठीक है। तो हम लोगों का जो वेसिकुलर पार्ट है वो सारा एल्वियोलाई से छोड़ा हुआ एयर हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा सारे एल्वियोलाई एक साथ काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से एक इधर से छोड़ रहा है, एक दूसरी जगह से छोड़ रहा है, तो इसलिए हमेशा तुम लोगों को कॉन्टिन्यूअस साउंड तुम लोगों को सुनाई देगा। बट ब्रोंकियल में क्या है, पहले एयर जाता है, फैलता है, फिर वापस आता है, तो इसलिए पॉज मिलता है, ठीक है। जब ये होता है, क्या कहते हैं उसको, फाइब्रोसिस होता है या फिर कुछ भी ऐसा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो उसमें ब्रोंकियल साउंड सबसे ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि जो एल्वियोलाई है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसके वजह से जो एयर एल्वियोलाई तक जा रहा है, वो एल्वियोलाई इज लाइक ए बेलून, ठीक है। तो वो ऐसे खींचता है, फिर वो ऐसे छोड़ता है, बट एम्फाइसीमा के टाइम पे वो एकदम ये हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो एक्सपांड नहीं कर पाते हैं।
दे लूज देयर एक्सपांशन, देयर इलास्टिसिटी। तो उससे क्या होता है, जो एयर है वो जाके डायरेक्ट वापस चला आता है। द एल्वियोलर साउंड इज नॉट प्रेजेंट देयर। तो अगर ब्रोंकियल साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ऐसे इधर भी अगर पैल्पेट करके ऑस्कल्टेट करके अगर देखोगे, अगर ब्रोंकियल साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब उसको या तो एम्फाइसीमा है, फाइब्रोसिस है या न्यूमोनिया है। ठीक है, अब हम लोग ये करेंगे वोकल रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, वोकल रेजोनेंस, इसमें भी हम लोग सेम एज वोकल फ्लेमिटस हम लोग ये करेंगे। हर दूसरे जगह पे रख के उसको बोलेंगे 1 1 1 2 2 2। In this case we will use stethoscope in place of our sternal border। ठीक है, तो तुम लोग एक बार सुन लो, ऐसे लगा के इंटरस्केपुलर एरिया में रख के 1 1 1 करने के लिए बोलो, फिर दूसरी जगह 1 1 1, तो तुम लोगों को एक वाइब्रेशन सुनाई देगा। ठीक है।